Students, in this video, we'll do the questions based on some special integrals. So, some special integrals are here. Now, that 1 upon x square minus a square, if any integration will be in the form of 1 upon x square minus a square dx, then it will be 1 upon 2a log x minus a upon x plus a plus c. If it will be in the form of 1 upon a square minus x square dx, then it will be 1 upon 2a log a plus x upon a minus x. If it will be in the form of 1 upon x square plus a square, then the integration will be 1 upon a tan inverse x upon a plus c. And if it will be in the form of 1 upon root x square minus a square, then the integration will be log x plus root x square minus a square plus c. This is the sign of mod. So the value of variable will be positive always. Now 1 upon root a square minus x square is equal to sine inverse x upon a plus c, and 1 upon x square root x square plus a square is equal to log x plus root x square plus a square plus c. So we have 6 special integrals, that 1 upon x square minus a square, then a square minus x square, then x square plus a square, and these 3 things will be in root in the next 3 formula. Okay, so this 6 formula, and we'll do some questions based on these special integrals. Okay, so now see here. In this video, we'll discuss the question based on this format. देखिए, अगर इन चारों फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन गिवन हो तो उसे कैसे सॉल्व करना है. जैसे आपको न्यूमरेटर में कुछ px प्लस q का फॉर्म दिया हुआ रहेगा और डिनोमिनेटर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऊपर लीनियर इक्वेशन होगी. तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. यहाँ न्यूमरेटर में 1 रहेगा और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी. यहाँ रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और सेम लीनियर इक्वेशन न्यूमरेटर में होगी, और यहाँ डिनोमिनेटर में रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. बाकी न्यूमरेटर 1 रहेगा. अगर ये चारों टाइप हुए तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो देखिए. इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एंड इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. ओके, सो px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म है ये. और इस फॉर्मेट के क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेशल मेथड हमें ध्यान रखना होगी. सो इट विल बी, हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमरेटर है x प्लस 2, ओके, इसको कंसीडर करेंगे. लेट इसको कंसीडर करेंगे हम a डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b. आपको यहां 2 वेरिएबल्स लेना है, a और b, और इसको इस फॉर्मेट में कंसीडर करना है. ये हर क्वेश्चन के लिए होगा कि आपको जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन लेना है, उसका मल्टीप्लाई आप a में करोगे और फिर प्लस b उसको कंसीडर करोगे आप न्यूमरेटर के इक्वल. अब यहां से हम a और b की वैल्यूज निकालेंगे. कैसे? a विल बी एज इट इज. Now the differentiation of 2x square plus 6x plus 5. So it will be 4x plus 6 plus b. Okay. Now x plus 2 is equal to, when you will multiply, then 4ax plus 6a plus b. So when you will
compare it. Compare the equation. So here in the right hand side, the coefficient of x is 4a and here the coefficient of x is 1. So 4a is equal to 1. That's why a is equal to 1 by 4. Okay. And when you will compare the constant value, then it will be 6a plus b is equal to 2. So when you will put the value of a here, it will be 3 by 2 plus b is equal to 2. B is equal to 2 minus 3 by 2. So it will be 1 by 2. So the value of b is 1 by 2. Okay. Now we have the values of a and b. So just consider this equation as equation 1. So put the value in equation 1. Why? Because we need the value of x plus 2. That's why. तो आप यहाँ पर put the values of a and b in equation 1. So equation 1 में x plus 2 is equal to a 4x plus c plus b, ये है equation 1. So x plus 2 is equal to a की वैल्यू 1 by 4, 4x plus 6 plus b की वैल्यू 1 by 2. ये वैल्यू हुई x plus 2 की. ओके. सो इसे हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं. ठीक है. Put the value of x plus 2 in question. So when we will put the value in the question, then we'll get like this. Now since in the numerator we have two functions, so just give the denominators separate to each other. So it will be like this. 1 by 4, 4x plus 6 upon 2x square plus 6x plus 5 plus 1 by 2, 2x square plus 6x plus 5 dx. Okay. Now 1 by 4, 4x plus 6 upon 2x square plus 6x plus 5 dx plus 1 by 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. देखिए सेपरेट कर दिया है दोनों को. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेशंस. अब हमारे पास दो इंटीग्रेशन है, इसलिए जब इसका पूरा फाइनल आंसर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको सेपरेटली एक इंटीग्रेशन और एक ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. सो हम इसको कंबाइंडली लिख देते हैं. द कंप्लीट इंटीग्रेशन विल बी 1 by 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 by 2 इंटीग्रेशन 2. ओके. इसको इंटीग्रेशन 2 कंसीडर कर लिया है, इसको इंटीग्रेशन 1 कंसीडर कर लिया है. हम इंटीग्रेशन 1 और 2 की वैल्यूज निकालेंगे और फिर यहीं पुट कर देंगे, इसलिए इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं. ओके. नाउ टेक इट. इंटीग्रेशन 1 इज इक्वल टू, इट इज 4x plus 6 upon 2x square plus 6x plus 5 dx.
अब आप देखिए, इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप अगर इसको टी कंसीडर करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है। ओके, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट 2x² + 6x + 5 = t. Now differentiate it with respect to x. So it will be 4x + 6 = dt upon dx. So it will be 4x + 6 dx = dt. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने पिछले वीडियो में यही सीखा है। सो दैट 4x + 6 dx, 4x + 6 dx की प्लेस पर हम dt रखेंगे और डिनोमिनेटर में हमने t कंसिडर किया है तो हम t रखेंगे। सो इट विल बी I1 = 1 upon t dt. ओके, इट विल बी 1 upon t dt। और इंटीग्रेशन 1 upon t dt क्या होता है, log t plus c। सो I1 = log t। अब आप देखिए, t की प्लेस पर हमने 2x² + 6x + 5 को t रखा था। सो 2x² + 6x + 5 प्लस ये c1 हो जाएगा क्योंकि ये एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, फर्स्ट इंटीग्रेशन का। सो इट विल बी c1। ओके, सो इट विल बी I1 = log 2x² + 6x + 5 mod के साथ प्लस c1। नाउ गिव इट टू इक्वेशन 3। अब देखिए, नाउ आई हैव टू टेक e2 इंटीग्रेशन 2 एंड इंटीग्रेशन 2 इज व्हाट, 1 upon 2x² + 6x + 5। अब आप देखिए, मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे फॉर्मेट बताए थे। तो फॉर्मेट में हमने एक फॉर्मेट देखा था px + q upon ax² + bx + c का फॉर्मेट। फिर एक फॉर्मेट वहां पर मैंने बताया था 1 upon ax² + bx + c का फॉर्मेट। तो ये एक अलग तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन, इसलिए आप इसको देख लीजिए। अब जब आपको ऐसा फॉर्मेट मिले किसी क्वेश्चन में, तो आप उस फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। आपको सबसे पहले x² का कोफिशिएंट हमेशा 1 रखना है, ध्यान रखिए। सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब x² का कोफिशिएंट अगर 1 होना चाहिए तो इट मीन्स मुझे इस पूरे डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मतलब मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। सो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ओके, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो ये जो मल्टीप्लाई है इसे 1/2 बाहर ले लेते हैं, 1/2, और इस 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं। सो ये हो जाएगा x² + 6x upon 2 हो जाएगा 3x, प्लस ये हो जाएगा 5/2 dx। ओके, अब आप ध्यान रखिए यहां पर कि ये जो x² + 3x + 5/2 है, जब इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इस वैल्यू को, तो आपके पास एक तरीका होता है, वो ये होता है कि आपको b/2a, जहां आपका डिनोमिनेटर ax² + bx + c के फॉर्म में है, वहां पर आपको b/2a के स्क्वायर से प्लस करना है और माइनस करना है। ठीक है, तो जब आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर ax² + bx + c का फॉर्म है और इसमें b की वैल्यू है 3/2 इंटू a की वैल्यू है 1,
तो इसका मतलब है कि आपको 3/2 के होल स्क्वायर से प्लस करना है और माइनस करना है। ये स्टैंडर्ड है, ये हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5/2 प्लस 3/2 स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर। अब देखिए 1/2 एज इट इज 1/, अब ये स्क्वायर बनाना है हमें, सो स्क्वायर बनाना है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिखा, ये जो 3x है इसमें मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? 2ab वाला फॉर्मेट बनाने के लिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्मेट बनाने के लिए, ताकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। अगर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3/2 है, मतलब इसे हम अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहें तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा ये। और यहाँ पर ये जो 3/2 हमने एक बार प्लस और एक बार माइनस किया था, क्योंकि मैथमेटिक्स में जब भी कोई वैल्यू प्लस करते तो वो माइनस भी करना होती है। जब 5/2 माइनस इसको हमने लिख दिया 9/4, जब हम इसका एलसीएम लेंगे इट विल बी 2/8 and 2/8 will be 20 minus 18/8, so it will be 2/8, it will be 1/4, और 1/4 को हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जब आपको कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स के फॉर्मूले बताए थे तो उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला है, और वो क्या है देखिए, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ओके, ये होता है स्पेशल इंटीग्रेशन। तो हम यहां पर अगर कंपैरेटिवली देखें तो देखिए x की प्लेस पर है x प्लस 3/2 और a की प्लेस पर है 1/2। इस फॉर्मूले से जब हम e2 निकालेंगे 1/2 विल बी एज इट इज, एंड व्हेन विल अप्लाई दिस फॉर्मूला 1/a, a की प्लेस पर है 1/2 tan इनवर्स x की प्लेस पर है x प्लस 3/2 और a की प्लेस पर है 1/2 प्लस c2, क्यों? बिकॉज हम e2 निकाल रहे हैं तो उसके साथ वाला कांस्टेंट हमने c2 ले लिया। अब देखिए e2 इज इक्वल टू, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा रेसिप्रोकल होके, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी tan इनवर्स, और यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/1, बिकॉज 2 से 2 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, और प्लस c2। e2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x plus 3 plus c2. Now give it to equation 4. So now we have to put the values in equation 2 by equation 3 and 4. हमारी equation 2 क्या थी?
इक्वेशन 2 हमारी थी I इज इक्वल टू 1/4 I1 प्लस 1/2 I2. I is equal to 1/4 I1 plus 1/2 I2. Okay. From equation 2. Now I is equal to 1/4. अब आप देखिए I1 की वैल्यू, I1 की वैल्यू log 2x square plus 6x plus 5 plus c1. Log 2x square plus 6x plus 5 plus c1 plus 1/2. I2 की वैल्यू tan inverse 2x plus 3 plus c2. Okay, when we will multiply inside, then it will be like this: 1/4 log 2x square plus 6x plus 5 plus 1/2 tan inverse 2x plus 3 plus this 1/4 will be multiplied with c1. So 1/4 c1 plus 1/2 c2. Okay. So let 1/4 c1 plus 1/2 c2 is equal to c. Why? Because आपको इंटीग्रेशन में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि कितने भी कांस्टेंट्स हों इंटीग्रेशन के फाइनल आंसर में कंबाइनली एक ही कांस्टेंट लिखा जाता है. सो सभी की प्लेस पर हम एक कांस्टेंट लिख देंगे. सो आवर फाइनल आंसर विल बी 1/4 log 2x square plus 6x plus 5 plus 1/2 tan inverse 2x plus 3 plus c. This is the final answer. Now we are doing one more question so you can better understand the method. See here. Here in the denominator we have the root and quadratic equation in the root, and in the numerator there is px plus q format. So in the same question we will understand the method of px plus q upon root ax square plus bx plus c and 1 upon root ax square plus bx plus c. Both the formats we will understand in the same question. So at the first step you know very well that what you have to do, that we have to consider let x plus c is equal to a d by dx of 5 minus 4x minus 2x square plus b. So x plus 3 is equal to a. When you will differentiate it, it will be minus 4 minus 4x plus b. So x plus 3 is equal to minus 4a minus 4x plus b. So x plus 3 is equal to minus 4ax minus 4a plus b. Okay. So when you will compare, by comparing minus 4a is equal to 1, so a is equal to minus 1/4 and minus 4a plus b is equal to 3.
So minus 4 into minus 1 by 4 plus b is equal to 3. So it will be 1 plus b is equal to 3. So b is equal to 2. Now we have the values of a and b. So consider this as equation 1. Now put the values in equation 1. It is same as the previous question. Only the root is there in the denominator. So put the values of a and b in equation 1. So it will be x plus 3 is equal to minus 1 by 4 minus 4 minus 4x plus 2. Put the value of x plus 3 in क्वेश्चन में पुट कर देते हैं. सो आप देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है. x प्लस 3 की प्लेस पर हम जो वैल्यू अभी हमने निकाली है वो हम लिख देते हैं. सो इट इज माइनस 1 बाय 4 minus 4 minus 4x plus 2 upon root 5 minus 4x minus 2x square dx. Okay, so now this is our question and we have to divide this denominator with this and this value. So we'll distribute it. See here, it will be like this. Integration minus 1 by 4 is constant. Minus 4 minus 4x upon root 5 minus 4x minus 2x square dx plus 2 constant 1 upon root 5 minus 4x minus 2x square dx. So I is equal to means the final integration will be minus 1 by 4 I1 plus 2 I2. This is equation 2. So we will find the integrals of this integration and this and I1 and I2 and we'll put the values in equation 2. So the final integration will be obtained. Now this is I1. So for the I1 you know very well that now after differentiation we have got minus 4 minus 4x. So let 5 minus 4x minus 2x square is equal to t. So minus 4 minus 4x dx is equal to dt. So put the values. I1 is equal to 1 upon root t and minus 4 minus 4x dx. इसकी प्लेस पर dt वैल्यू आ जाएगी. ओके, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी डी टी. इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 डी टी. सो ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस C1. और ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx से, जो कि होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ओके, सो I1 इज इक्वल टू
it will be t to the power 1 by 2 upon 1 by 2. So that 1 by 2 will be 2 and will be root t plus c1. Now I1 is equal to 2 root t, and we have considered t as 5 minus 4x minus 2x square. 5 minus 4x minus 2x square plus c1. Now give it equation 3. Okay, it is same as the previous question, only we have the root here. So we are discussing two questions, so it can be in practice. अब देखिए, we have to find out E2. Now what is E2? So it is integration 1 upon 5 minus 4x minus 2x square dx. Now we can write it like minus 2x square minus 4x plus 5, because ax square plus bx plus c का फॉर्म चाहिए हमें. बट यहां पर देखिए माइनस 2x स्क्वायर है और हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 चाहिए. सो हम क्या करेंगे यहां पर, देखिए हम यहां पर टू से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे. और ये पूरी वैल्यू रूट में है. ठीक है, अब यहां देखिए ये 1 अपॉन रूट 2, ये रूट के अंदर 2 है तो 1 अपॉन रूट 2 कॉन्स्टेंट को हम यहां बाहर लिख देंगे एंड 1 अपॉन इस रूट के अंदर देखिए इस 2 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/2. ओके, 1 अपॉन रूट 2 एज इट इज. अब हमें ये माइनस साइन भी नहीं चाहिए, सो हम माइनस साइन को भी कॉमन ले लेंगे. सो जब आप माइनस साइन को कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5/2 ये वैल्यू होगी ओके रूट में. अब आप इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मीन्स आपको यहां पर एक होल स्क्वायर बनाना है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था. तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अगर फॉर्मेट हो तो स्क्वायर किसका बनाया जाता है, बी अपॉन 2a का स्क्वायर बनाया जाता है और उसी से प्लस और उसी से माइनस किया जाता है. ठीक है, सो यहां पर जब आप देखेंगे कि b की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2/2 यानी 1. तो ये 1 का स्क्वायर बनेगा. आपको 1 के स्क्वायर से प्लस और 1 के स्क्वायर से ही माइनस करना होगा. सो इट विल बी 1/2. इट इज -1 एज इट इज एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5/2 माइनस 1. ये 5/2 तो पहले से ही है और फिर अभी -1 भी हुआ. अब I2 is equal to 1 by root 2 as it is. Now 1 upon this -1 as it is in the root. Now it is a plus b whole square. So it is x plus 1 whole square minus. When you will simplify it, it will be minus upon 2. So it will be minus 7 upon 2. So minus, you can write it like root 7/2 whole square. Okay, it is 7/2. So we have to write it in the form of a square. So we can write it root 7/2 whole square. Okay, so
see here, when I will multiply this minus 1 inside, जब ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे. सो इट विल बी √7/2 होल स्क्वायर माइनस x + 1 होल स्क्वायर dx. ठीक है, अब आप देखिए ये किस फॉर्म में बना है. 1/√a² - x², इंटीग्रेशन 1/√a² - x² dx. और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a + c. ओके, सो I2 = 1/√2 एज इट इज. और यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो a की प्लेस पर है √7/2 और x की प्लेस पर है x + 1. तो जब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे सो इट विल बी साइन इनवर्स. देखिए x की प्लेस पर क्या रखें, x + 1 अपॉन a की प्लेस पर क्या रखें, √7/2 और प्लस C2, बिकॉज हम I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं. So I2 = 1/√2 sin inverse √2 x + 1 upon √7 plus C2. This is equation 4. इक्वेशन 3 में I1 की वैल्यू निकाली थी हमने, अब इक्वेशन 4 में I2 की वैल्यू निकाली है. अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 2 में वैल्यू रख देते हैं, बिकॉज हमें फाइनल इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. सो टू गेट फाइनल इंटीग्रेशन, put the values from equation 3 and 4 in equation 2. इक्वेशन 2 में रख देते हैं वैल्यू. अब देखिए इक्वेशन 2, ये है हमारी इक्वेशन 2. So I is equal to -1/4 I1 plus 2 I2. और इक्वेशन 3 से I1 की वैल्यू है 2 × √5 - 4x - 2x² plus C1. So I is equal to -1/4 and the value of I1 is 2 × 5 - 4x minus 2x² plus 2 and the value of I2, सॉरी ये प्लस C1 भी आएगा, प्लस 2 × I2 की वैल्यू है 1/√2 साइन इनवर्स √2 x + 1 upon √7 plus C2. ओके, अब देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो इस -1/4 का जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए ये -1/4 और ये पूरी I1 की वैल्यू है. ओके, और यहाँ पर ये पूरी I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है. ठीक है, सो जब मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे सो इट विल बी -1/2 √5 - 4x
2x² माइनस 1/4c1, ओके, प्लस जब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी √2 साइन इनवर्स √2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन √7, ओके, और इस 2 का इस c2 में भी मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 2c2. So final integration is -1/2 √5 minus 4x minus 2x² plus √2 sin inverse √2 into x plus 1 upon √7 और प्लस फाइनली c, बिकॉज ये -1/4c1 और प्लस 2c2 की प्लेस पर हमने एक फाइनल कांस्टेंट c लिख दिया. ओके, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर.